जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग विशा, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 549th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today we are going to discuss the roadmap for Nifty Bank Nifty for tomorrow's session and have a look at the global markets as to what is happening in the global equity markets and the commodities markets. So let us start today's session and welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Yeah, we will take stock queries towards the end of the session. Before I proceed, let me just remind you guys that next training is scheduled for this weekend, which is the coming Saturday and Sunday. And tomorrow is the last day to register for this training. So if anybody is left out, if you want to join, if you want to register, you can WhatsApp. The number is given in the description box, and you can register and you will be added in our student Telegram group for a period of 3 months. So, US market is down right now, and this is very much on the lines of our expectation and previous analysis. So, right now, US market is down by almost 200 points. The S&P 500 from these shorting levels. So, जैसा कि कल मैंने explain किया था कि I'm bearish on US market and I expect at least 4320. I expect these levels to be tested on the S&P 500. Even if any counterback rally comes, it will be complete sell on rise itself, and I think the US market should go here. सो इस पे जो पुराने व्यूज है मेरे, वही व्यूज इस पे इंटैक्ट रहेंगे. आज इस समय जर्मन डैक्स इज आल्सो डाउन. It had given a bounce back, but again these markets are bearish. So equity markets I am not very bullish, and these markets are going to go down. Emerging market ETF is also down by 1%. ACWI is also down by 1%, and the chart structure is everywhere bearish. Now we have made a very good bottom in last month, so I don't see breach of this level, okay, in either of these markets. These bottoms are going to hold for pretty some time, maybe a couple of months, maybe at least 1 month. But yes, surely there will be a deeper correction, post which there can be another leg of up move, and then the final assault. So I think the theme for this entire quarter, which started from 1st of April, the theme was very simple. And what was the theme? The theme was, because last quarter ended on a negative note, not only negative, a big negative note. We closed almost near the lows. So the theme for this quarter was there will be one up move during the quarter, okay, intra quarter, then a correction, then again an up move, and then the final direction. So that final direction, that could be towards new highs or that could be towards new lows. So right now we have done this, we are doing this, and post the pullback, there should be another round of a up move. So I'm just explaining कि equities का theme क्या है इस quarter में, और हम अभी कौन से leg में हैं. ठीक है, let us talk about फॉरेक्स, क्योंकि यहाँ पे यूएस डॉलर जो है, इट इज़ कंटिन्यूइंग इट्स स्ट्रेंथ विच स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट वीक. So originally I did not expect US dollar to sustain about this, but I think since last 2 days it is sustaining. But still there is not much upside. I think there is a very significant resistance that is going to come in the US dollar, and but till that time it can continue to show strength. So the upside is limited. I don't see any major upside. I think this trend is almost at its last stage for this time, and there should be a greater pullback during this quarter. So this is the weekly chart of US dollar, and if you look at the long-term chart, we are at a major resistance. So generally, it's at these levels that uh, the stop losses are hit of traders, and then the price reverse. So I think this is what is going to happen in the US dollar. These are pretty significant resistance level, and I think US dollar can go little higher but not beyond this. So I'm bearish on US dollar initially. Right now it is slightly bullish, but after this it should be bearish, and probably that should coincide with the next leg on upside in the equities market. So जो मैंने अभी आपको equities में explain किया
कि first leg was up, now we are going down, then again it should be up. That same thing should tally with the US dollar. Okay, so because equities are going down right now, or because the dollar is going up, the equities, they are going down. Once dollar saturates, equities will bottom. Once dollar starts to correct, equities will start to rally. ठीक है, तो ये थीम इस समय ये आउटप्ले हो रहा है. Now, with US dollar maintaining the bullishness, that should have elevated the USD INR. But again, today RBI has sold off dollar. There was a very clear cut sign that RBI, the hands of RBI were very much visible. Because if you remember, मैंने आपको USD INR पे एक level दिया था 76.25, and the moment it hit this level 76.225, there was a sudden drop, and it lost almost 20 paise instantaneously, and then it closed near the 76.05 level. So this is clearly the RBI is very strongly defending the rupee, because it knows that if it gets out of hand, अगर ये थोड़ा भी और ऊपर शूट करना शुरू कर दे, 76.5 को एक बार ये टच करे, इसके ऊपर क्रॉस करे, तो वेरी इजिली रूपी कैन reach 78 and make a fresh new lifetime high, because of the US dollar. So RBI, because RBI is very strong, RBI as a central bank has a very big war chest to fight any kind of adverse dollar movement. So RBI is definitely utilizing its resources, and RBI is suppressing the rupee. So RBI has a very clear mandate. रूपी को 74 to 76 के स्लैब में रखना है, एवरेज आउट कर देना है 75 पे. 75 इज द लाइक एवरेज प्राइस. So this is what RBI is trying to achieve, so that it doesn't go towards the next psychological level of 80. Okay, so let us see the euro and the British pound. So euro is bullish today, and the euro, I think it has most probably made a bottom. It looks like a very credible bottom, and it has been running on the lower side since almost consecutively. If I see, so today is the eighth day. So tomorrow is a very critical level, because tomorrow, if it doesn't gives a very strong bullish candle, tomorrow or day after tomorrow, next 2 days, probably tomorrow, we must see a big reversal coming in the euro. So that would be very good news for equities. So I think जब मैं निफ्टी की बात करूंगा, तब यूरो का जो है एक रोल उसमें आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो यूरो इज वेरी मच लुकिंग टू मी एज अ साइन ऑफ बॉटमिंग आउट. यूरो इज बुलिश. यूरो आईएनआर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 82.5 बहुत ही सॉलिड लेवल है, एंड 82.5 से ऑलरेडी एक बार ये 83.25 की जर्नी कर चुका है. सो एनी डिप दैट कम्स इन द यूरो आईएनआर, यू शुड बाय. ओके, यूरो आईएनआर can give a very nice reward on the higher side. Today, what happened? The USD JPY has again made a new high, and that triggered the stop loss on the JPY INR long. So we have exited the JPY INR trade in loss. So this has to be done now. For tomorrow, let me tell you something. Some selling intraday is now visible, and if tomorrow, this is the resistance, the long term resistance since 2008, and if I look at the 5 minute candles, it is precisely respecting this level. Now that is a beauty of the forex market, the spot forex, because it is a 5 trillion turnover daily, so it's the biggest market. Now look how precisely even the 5 minute candles, they are not closing above that level. This level I'm talking about, it's here, 125.7 के आसपास. So this is the long term resistance which has been tested today by the USD JPY. Okay, and we have got one reaction now in by morning. If we see USD INR not sustaining here and dropping back, okay, like this on a 5 minute chart, so tomorrow morning, when the JPY INR contract opens, I think I will buy back this pair. Okay, so pretty much it should be somewhere near the same level, so there would not be any loss, but there will be notional loss. So the JPY INR pair probably, if this looks to me happening like this, if this is bearish on a 5 minute chart, definitely JPY INR को वापस से जो है buy back कर लेंगे, because any down move from here in the USD JPY will bring at least straight away 2 rupees up move in this pair. Okay, so that could be very profitable.
नाउ फ्रॉम अ फ्यूचर्स परस्पेक्टिव लेवल वाइज मैं बात करूं तो 61.25 ये लेवल आप नोट कर सकते हो। इसके ऊपर जैसे ही ये चलना शुरू करेगा देयर विल बी अ बिग ब्लास्ट एंड 63.25 तक ये नॉन स्टॉप भागना चाहिए। ठीक है, सो ये एक लेवल है। इसके नीचे ये अभी तक साइकोलॉजिकली बेरिश है। राउंड नंबर 60.25 60 तक ये जा सकता है। ठीक है, बट 61.25 के ऊपर इट इज कंप्लीट बुल स्वीप। सो द जेपीवाई आईएनआर फ्यूचर्स लेवल इज 61.25। ओके, नाउ यूरो बता चुका हूँ, जेपीवाई बता चुका हूँ, और यूएसडी आईएनआर तो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि बुलिश है। सो यूएसडी आईएनआर जो है मैंने आपको बोला भी था कि 75.5 से लेके 75.25 इट्स अ बाइंग जोन, एंड यहाँ से पहला टारगेट आज अचीव हो चुका है जो कि 76.25 है। सो यूएसडी आईएनआर में अगेन सेम करना है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, और 76.5 क्रॉस करे तो उसे आप होल्ड करिए या फ्रेश बाय बैक कर लो छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, फॉर नेक्स्ट न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। ठीक है, सो दैट इज द यूएसडीएनआर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट पेयर विच इज ब्रिटिश पाउंड। सो ब्रिटिश पाउंड जो है आज इंट्राडे काफी अच्छा बुलिश कर रहा था, बट अगेन दैट सेम प्रॉब्लम is happening with the British pound, that it is not able to create, not able to push through the levels. So just like euro, it is also sitting at a double bottom structure here, and these are long term support levels. So we need that break on the higher side. Once we reclaim this level, then there will be no looking back, and GBP INR will rally very hard towards the 1.34 level, which is again the resistance, the pitchfork resistance coming from higher time frame. And from there, next time we will see what happens. क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे फॉरेक्स हो, कमोडिटीज हो, इक्विटीज हो, इसमें जो अभी का एक ट्रेंड है, इसके बाद जो एक ट्रेंड आएगा, ये दोनों तो ठीक है, बट जो थर्ड ट्रेंड होगा, that will be most important trend, because that will decide how the rest of the year is going to work out. So if it is going on the higher side, it will be very bullish. If it is going on the lower side, it will be very bearish. So it's going to be absolutely high beta. ठीक है, ये चीज जो है आप ध्यान में रखें, और उसी टाइम पे मैक्सिमम लोग जो है मैक्सिमम गलती करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल ये थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा तो बुलिश हो जाएगा। नाउ फ्यूचर्स लेवल की हम बात करें तो वही लेवल्स हैं, 99 पकड़ लीजिए आप, 98.9 80, ये जो प्रिसाइसली मैंने बताया था, आज भी आई थिंक वही बॉटम है। सो ये एक सब सपोर्ट जोन्स हैं, यहाँ पे बाय करना है। एंड ऑन द हायर साइड आई वांट टू सी द जीबीपी आईएनआर पेयर ऑन द एनएससी फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर्स की लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। आई वांट टू सी दिस सक्सेसफुली लाइक क्लोजिंग अबाउ 100.5। ठीक है, जब ये एक बार इसको क्रॉस कर लेगा ना, तो फिर ये नीचे नहीं आएगा, तो फिर ये ये बेस जो है बहुत ही सिक्योर्ड हो जाएगा। एंड देन द पाथ विल बी ऑन द हायर साइड, एंड देन हायर टारगेट्स ऑफ 101.25 एंड अगेन 102 2.5 एक्सेट्रा, ये सारे टारगेट्स आएंगे। So these are taking time, but we need little bit of push through the resistances to bring all these levels into play. So that's the forex market update. Very quickly हम चलते हैं commodities market में, जहाँ पे WTI क्रूड ने जो है आज नेगेटिव ओपनिंग की, एंड इट इज राइट नाउ थ्रेटनिंग द प्रीवियस बॉटम्स, प्रीवियस लेवल्स। $94 पे ट्रेड कर रहा है, और जो 92 का जो सपोर्ट है, आई थिंक ये इसको एक बार टेस्ट करेगा फॉर श्योर। इट इज गोइंग टू टेस्ट दिस 92.5 लेवल। आफ्टर दैट आई विल वॉच एंड गिव द फ्रेश ट्रेड। आज हमने इसमें इंट्राडे एक ट्रेड ट्राई किया था, बहुत अच्छा ट्रेड था, बट आई थिंक वो 100 पॉइंट की स्टॉप लॉस रखी थी, वो हिट हो गया था शाम को प्री यूएस मार्केट ओपनिंग में। So still, the COMEX chart is looking okay to me right now. It can very easily flush through this bottom and rocket again. But अब यहाँ पे मैं इसमें back foot पे हूँ. Why? Because it is at the moment where it can create a breakdown, or it can create a flush and start to rally very स्मार्टली। ठीक है, फ्लश क्या होता है, फॉल्स ब्रेकडाउन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ट्रेनिंग में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करते हैं, बिकॉज दीज प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं दोस्तों ये। ठीक है, इस पे ज़्यादा हमारा एम्फोसिस होता है। सो दैट इज़ दी अपडेट ऑन क्रूड ऑयल। ओवरऑल एमसीएक्स के टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो
7400 के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ। 7400 के ऊपर मुझे दिखाई दे क्रूड तो मैं इसमें बुलिश हो जाऊंगा। या फिर अगर एटलीस्ट कल मैं चाहता हूँ कि अगर ये 7335, ओके, आई वांट दैट दिस इनसाइड बार स्ट्रक्चर जो आज इसने एक ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, अगर ये भी नेगेट हो जाए, आज के हाई के ऊपर भी हम चले जाएं एमसीएक्स में, तो भी एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ और एक अच्छा एक ट्रेड होगा। सो आई विल नॉट गो लॉन्ग इन क्रूड ऑयल अनलेस आई सी क्रूड ट्रेडिंग अबाउट 7335 minimum, right? Or I get a big reversal candle like bullish engulfing or bullish pin bar or something like that. I need some sort of reversal. Only in that case I will go on the long side. Till either of these two are not happening, there is no long trade from my side. Yes, there is a very good support on $92.35 on WTI. In MCX, on MCX, I think it is 69.57, 69.57 as a crucial support. So these two levels can be flushed, can be tested. और एक ट्रेंड के लिए मैं चाहता हूं कि 7335 मिनिमम टच हो, ठीक है। वी वांट टू सी क्रूड ट्रेडिंग अबाउट दिस, ओनली देन इसमें हम लॉन्ग करेंगे। नहीं तो फिर ये एक डाउन ट्रेंड अगर पकड़ लेगा, लाइक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो फिर हम सेल ऑन राइज मोड में आएंगे, ठीक है। सो राइट नाउ इट इज दैट ट्रांजिशन वाला फेज, तो इसीलिए इसमें हम अब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट्स द क्रूशियल अपडेट कमिंग ऑन क्रूड ऑयल मार्केट। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेचुरल गैस, जिसने 500 का टारगेट जो है कंप्लीट कर लिया है। और इस पे हम थ्रू आउट सो मेनी मंथ्स वीक्स हम बुलिश थे, एंड ऑल दीज टारगेट्स आर गेटिंग कंप्लीटेड एज यू कैन सी। जो लॉन्ग टर्म इसकी प्रिडिक्शन थी वो यही थी, एग्जैक्टली ये लेवल था, derived through the magic of pitchfork, and that level is getting completed. So इसमें जो है आप बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। मोस्टली यू शुड बुक आउट हियर एंड देन वी विल वेट फॉर फ्रेश ट्रेड। नाउ सपोज इफ नेचुरल गैस बिकम्स मोर बुलिश, सो क्या नेचुरल गैस 700 जा सकता है, क्या नेचुरल गैस और ऊपर जा सकता है? इन सब बातों के लिए ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, इसको मैं आज नहीं रिवील करूंगा, बट आई वुड रिवील when the time is appropriate, ठीक है। So there is a long term perspective, long term story also for natural gas, ये हम crucial time पे रिवील करेंगे, ठीक है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड इज ट्रेडिंग एट 52,100 level, and many people got excited looking at the up move in gold, but I warned in group कि कोई ट्रेड मेरी तरफ से नहीं है, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर दे आर प्रिटी मेस्ड अप सिचुएशन। सो गोल्ड और सिल्वर में अभी कोई ट्रेड नहीं है। मेटल्स की बात करें तो कॉपर जो है आज डाउन है, कॉपर 11 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। कॉपर में अभी कोई ट्रेड नहीं है, इट इज ब्रेकिंग डाउन, बट लुक एट द गार्बेज प्राइस एक्शन, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेटल्स एट ऑल। सो दैट्स द फाइनल थिंग ऑन योर एमसीएक्स। अब बात करते हैं बिटकॉइन और क्रूड की, बिटकॉइन और इथेरियम। तो बिटकॉइन ने फाइनली इस लेवल को ब्रेक कर दिया, 42,000 का लेवल बहुत ब्रेक हो चुका है, तो इसमें अगर कोई भी लॉन्ग है तो एग्जिट कर दो, क्योंकि ये अब सेटअप जो है फ्लॉप हो चुका है। सो बिटकॉइन इस समय एक बेरिश रूप ले रहा है। सो यहाँ पे अब कोई लॉन्ग्स नहीं है। पहले मैंने 44,000 पे लॉन्ग सजेस्ट किया था, विच इज समवेयर हियर। स्टॉप लॉस था 42,000 का, 42,000 हिट हो चुका है। सो इट इज लाइक आउट, टोटली आउट। कल थोड़ा सा एक यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ रही थी, बट आई थिंक टुडे दैट इज ऑल्सो गॉन। इथेरियम की अगर बात करें ऑन दी अदर हैंड, सो इथेरियम इज स्टिल प्रोटेक्टेड। सो आई थिंक इथेरियम, बिकॉज इट वाज मोर रेजिलियंट, आई थिंक इथेरियम को अभी भी आप एक 2900 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो। इट इज नॉट दैट फार ऑल्सो। 31 पे बाइंग थी, अभी हार्डली $75 नीचे है, तो इसको आप 29 के स्टॉप लॉस से ट्रेल करो, बिकॉज इथेरियम इज रिलेटिवली बेटर। इवन इफ टुमारो क्रूड even if tomorrow bitcoin turns to be bullish, it will be ethereum that will rocket very high towards 4,000, ठीक है। सो इथेरियम पे अभी हम ट्रेल करेंगे, बिकॉज इसका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है। सो वी विल कीप इथेरियम, एंड सपोज इन फ्यूचर if this turns out to be a false breakdown etc, और ये ऊपर टर्न होते हैं, तो इथेरियम will be the first one to rally higher as compared to the bitcoin, ठीक है। सो ये अपडेट है क्रिप्टो मार्केट्स पे। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फटाफट बात करेंगे कि आज इंडेक्स पे क्या हुआ, आज मैंने क्या ग्रुप में मैसेज किया एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बता दूं कि पहले तो बुलिश व्यू था जो कल मैंने आपको बताया था। सो दिस इज द प्लेस जहां पे हमें बाय करना था, हमने बाय किया, मार्केट ऊपर गया, गैप फिलिंग हुई और एग्जैक्टली यहाँ पे जो है मैंने ग्रुप में वार्न कर दिया कि निफ्टी जो है डिक्लाइन करेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी डिक्लाइन करना बहुत ही लॉजिकल बात है। सो बैंक निफ्टी में भी डिक्लाइन हुई, निफ्टी में भी डिक्लाइन हुआ, पुट्स भी बाय किए गए थे, कुछ लोगों ने फ्यूचर शॉर्ट किया। तो आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों साइड का जो है आज ट्रेड हुआ है, पहले लॉन्ग फिर उसके बाद शॉर्ट। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में देयर इज नो कंप्लेन, निफ्टी बैंक निफ्टी में सफलता हाथ लगी है। नाउ what's the perspective ahead for nifty bank nifty? So we are in a crucial time band. So ये जो time band है, this is where some sort of bottom or top must be formed. We have already hit a top, so it could be that we have made a top, okay, and we are in for a correction. Now अभी मैं कोई मेजर व्यू नहीं लेके चलना चाहता इस पे, क्योंकि जो मेरा एक मेजर व्यू है कि 17,500 से लेके 18,200 के बीच में मार्केट रहेगा, प्रेटी मच आई थिंक इट इज गोइंग टू वर्क। बट कल के लिए एक मेजर अपडेट है इस मार्केट में, ठीक है। व्हाट इज दैट अपडेट? लेट मी टेल यू गाइस। सो अपडेट ये है कि कल के दिन गोइंग बायस जो है ना वो थोड़ा नेगेटिव है, ओके। एंड कल हम पूरी तरीके से क्लियर हैं कि कल क्या करना है। सी फॉर टुमारो द मॉब लेवल विल रिमेन दिस, ओके। तो जब तक मार्केट इसके नीचे है ना, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। सो इफ द मेक और ब्रेक लेवल फॉर टुमारो सेशन विल बी 17,750, 750, 760. Below this I am clear cut bearish, and my first target is 17,550 and second target is 17,420, ठीक है। एक थर्ड टारगेट हम लेके चलेंगे 17,350 इन केस ऑफ एनी बिग डिक्लाइन। Now, what is the context? See, this market initially deserves to go down for once. ठीक है? Now, on the daily chart, you have made a inside outside bar, but इसकी लोकेशन कुछ खास नहीं है। So what this could do is it could trigger a downfall and a recovery like this, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सेटअप है ये मुझे लग रहा है कि कल गैप डाउन होना चाहिए मार्केट, एंड इफ देयर इज अ गैप डाउन इट्स अ कंफर्मेशन दैट वी नीड टू कीप ऑन शॉर्टिंग, एंड शॉर्ट साइड में जो है हमें प्ले करना चाहिए और नीचे के टारगेट्स आएंगे। सो जब तक मॉब लेवल के नीचे है इट्स अ बेरिश बायस, और ये आज के जो सपोर्ट्स हैं ये रेजिस्टेंस हो जाएंगे। सो सेल ऑन राइज हम कर सकते हैं, मॉब लेवल को स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, एंड नीचे के टारगेट्स के लिए हमें प्ले करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द प्रिफर्ड सिनारियो, दैट इज द एक्सपेक्टेड सिनारियो, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट इफ we manage to reach this 17,420 sort of level, बी रेडी फॉर अ बाउंस। अब वो बाउंस कल आए या परसों आए आई डोंट नो, क्योंकि कल के फिर ग्लोबल क्यूज वगैरह भी देखने पड़ेंगे। बट देर इज अ वेरी 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 ग्रेट चांस दैट intraday it will make a panic bottom and it will reverse somewhere from this 50-60 point band and again bounce back and reclaim the 17,550 580 levels, so as to maintain the broader range of 17,500 to 18,200 which we have discussed before, ठीक है। सो ये इसके नीचे सिर्फ ये इंट्राडे सॉर्ट ऑफ ब्रेक करेगा पैनिक कराने के लिए 100 150 125 पॉइंट्स, एंड देन इट शुड रिक्लेम एटलीस्ट दैट बिगर रेंज जो है, जो स्लैब है उसे। Now, scenario number two, if there is a bullish case, even if there is a gap up opening, but if the mob level is not being crossed, still the short view will be valid. Only अगर कल हम 17,750 के ऊपर ओपन करते हैं तो शॉर्ट व्यू इनवैलिड रहेगा, कोई भी शॉर्ट नहीं करना है। इन दैट केस वेट करिए, कोई गैप फिलिंग या बाय ऑन डिप फिर मेंटेन करेंगे, एंड वी वुड लाइक टू प्ले फॉर 17,900। सो 17,900 ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा और 17,980 ये हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। सो वी वुड बी देन टारगेटिंग दिस चैनल रेजिस्टेंस ओवर हियर एज अ फर्स्ट टारगेट, एंड देन सेकंड टारगेट अगर कल आया तो ठीक है, ठीक है। सो ये प्लान है कल का, और ज़्यादा इसमें बड़ा व्यू अभी मैं लेके चलना नहीं चाहता बिकॉज थिंग्स आर नॉट दैट इजी राइट नाउ। प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा टाइट है और बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी भी चल रहे हैं। सो ये व्यू हम लेके चलेंगे। एक हालांकि एक साइन यहाँ पे इस चार्ट के द्वारा जो है मार्केट कुछ दे रहा है मुझे, अब इस पे जो है मैं कल रिवील करूंगा कि क्या ये साइन है। लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी।
और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बैंक निफ्टी में कल का प्लान इज अगेन वेरी सिंपल, हम सिर्फ कल के प्लान की बात करेंगे। सो फॉर बैंक निफ्टी टुडे यहाँ पे जो एक शॉर्ट ट्रेड हमने दिया था, सो व्हाट आई फील इज बैंक निफ्टी इज गोइंग टू डिक्लाइन इफ वी डोंट टेक आउट द टुडेज हाई, जो स्पॉट पे 37,900 के आसपास है। ओके। So the mob level, the make or break level for bank nifty spot should be this level, which is, sorry, the mob level is this level, जो इंट्राडे एक बॉटम था 37,755, 37,755, दिस इज द मॉब लेवल। बिलो दिस आई एम बेरिश, और पहला टारगेट है मेरा 37,200 का, सेकंड टारगेट है 36,800, दैट्स इट। सो ये दो टारगेट्स के लिए हम नीचे प्ले करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी में गैप अप होता है तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है, नो शॉर्ट इन केस ऑफ गैप अप, स्पेशली गैप अप अबाउट दी मॉब लेवल। ठीक है, इन दैट केस बाय ऑन डिप करेंगे, और आज का बॉटम हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और हम टारगेट लेके चलेंगे 38,200 का, और दूसरा टारगेट लेंगे 38,420 का। ठीक है, so that's the plan and that's the update for bank nifty. So that's all from my side. Since I do not see any stock queries, I will wind up the today's session. अगर किसी को कोई stock queries है तो आप पूछ सकते हो। मुझे आज comments भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, whether it is a technical fault or what, I don't know. I don't see any messages also. Okay, so I think I will wait for 1 minute. अगर कुछ मैसेज आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वाइंड अप करना पड़ेगा। और रिपीट क्वेरीज मैं नहीं लूंगा, जो रिपीट क्वेरीज है आई विल टेक वेरी सेलेक्टिव क्वेरीज टुडे। ओके ओके, गुजरात एल्कली, व्यू, हिंदुस्तान जिंक, HDFC, NMDC। चलो फटाफट अटैक करते हैं। लेट अस सी, NMDC में शॉर्ट है किसी का, NMDC आपने शॉर्ट किया है 175 पे। ओके, सो NMDC अपना बुलिश काउंटर है, आई हैव बीन बुलिश ऑन NMDC, सो आप देख लो क्या करना है, बिकॉज आई एम बुलिश एंड अभी इसकी अपसाइड टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है गुजरात एल्कली, गुजरात एल्कलीज is the next query. So this stock has already made a new high. आई थिंक आप इसको 845 पे ट्रेल कर सकते हो, या तो आप इसको जो है बुक आउट कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। स्टॉक मेरे ख्याल से प्रीवियस हाइज को जस्ट टेस्ट कर चुका है, ऑल टाइम हाइज को। सो ऑल टाइम हाइज पे प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस हमेशा रहती हैं इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। सो यू कैन ट्रेल ऑल्सो 850 पे ट्रेल कर सकते हो, नहीं तो आप इसे बुक कर सकते हो। ठीक है, वोल्टास पे एक क्वेरी है, लेट मी चेक। काफ़ी दिन हो गए वोल्टास को देखे हुए। सो वोल्टास में इस समय देखो, वोल्टास में कोई ट्रेड नहीं है दोस्त, वोल्टास को कंसोलिडेशन अभी करने दो, एंड अगर इसमें कोई फ्रेश ट्रेड मिलेगा तो फिर हम लेंगे। अभी तो कोई ट्रेड नहीं है, अगर आप लॉन्ग साइड में हो तो मेरे ख्याल से आप फंस सकते हो और निकल जाओ। एक ट्रेड में एडवांस में आपको बता देता हूँ वोल्टास में, कि वोल्टास अगर सपोज किसी करेक्शन वगैरह में आपको अगर नीचे मिले लगभग 1200 के आसपास, तो एक बार जो है आप कंसल्ट करना। मोस्टली आई वुड लाइक टू बाय वोल्टास इफ आई गेट सम गुड करेक्शन, डीप करेक्शन पे ही मैं इस स्टॉक को बेट करना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक जो है एक रेक्टेंगल जोन में बन चुका है। सो आई डोंट वांट कि हम यहाँ पे बाय करके फंसे, क्योंकि एक्चुअल बाइंग की जोन्स यहाँ पे हैं। ठीक है, सो वोल्टास, टाइटन, दे शेयर अ सिमिलर टाटा ग्रुप एंड द फ्लो इज वेरी वेरी सिमिलर। BPCL लॉन्ग है आप 379 पे, तो BPCL 400 का जो टारगेट है दैट इज इंटैक्ट। ठीक है, लेट मी चेक BPCL if there is any change. So BPCL intact है, yes, 400 is our target and I don't see any problem. I think बहुत सही है, आपने 379 पे, ठीक है, आप स्टॉप लॉस 365 का मेंटेन कीजिए, आई थिंक आपका टारगेट पहले आ जाएगा।
Next I can see is Hind Petro. So BPCL or HPCL, very very similar. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंद पेट्रो. सो हिंद पेट्रो इज ऑल्सो बुलिश. बीपीसीएल बुलिश है तो ये भी बुलिश है. आई थिंक थोड़े दिन पहले से हमने कवर भी किया था. बीपीसी एचपीसीएल जो है, मैं समझता हूँ अगर आपकी बाइंग थोड़ा नीचे है, लाइक 277 सॉर्ट ऑफ अ लेवल, देन आई वुड सजेस्ट आप इसे होल्ड करें एटलीस्ट टिल 336. क्योंकि ये जो स्टॉक है, दिस स्टॉक विल एक्चुअली डू वेरी वेल इन नियर फ्यूचर. सो इट इज कमिंग आउट ऑफ अ वेरी नाइस करेक्शन. बहुत ही बढ़िया करेक्शन है ये, बहुत ही हाई क्वालिटी करेक्शन में से समझता हूँ. एंड ये पहला लेग है, ठीक है, पहला लेग, इसलिए मैं कह रहा हूँ 336 पे एग्जिट यहाँ पे, फिर एक और करेक्शन पे बाय बैक, एंड देन इट विल स्टार्ट अ वेरी वेरी नाइस रैली जहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉफिट्स होंगे. तो ये व्यू है HPCL पे. नेक्स्ट क्वेरी है उषा मार्टिन और उषा मार्टिन. यस, 73 रुपीज की बाइंग है. 73 के बाइंगे तो स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है. किस चीज का वेट कर रहे हो? अगर ट्रेंड फॉलो करना चाहते हो तो आपको ट्रेलिंग करना पड़ेगा 105 रुपए पे. ट्रेंड फॉलोइंग ऑलवेज कम्स विद कॉस्ट, राइट? सो या तो अगर आपको ट्रेंड फॉलो करना है तो 105 पे ट्रेल करो. मेरे ख्याल से तो यहाँ पे बुकआउट कर लेना चाहिए, और बाजार में कोई करेक्शन आई तो वापस बाय कर लो, क्योंकि स्टॉक एक बहुत ही अच्छे एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है. एंड यू नो, सो प्रीवियस हाइज के आसपास भी आ चुका है. या द प्रीवियस ऑल टाइम हाइज आई कैन सी ऑन मंथली चार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माय स्क्रीन. 155 वाज द प्रीवियस हाई, राइट? सो प्रॉफिट बुक करिए. बहुत ही शानदार ये ट्रेड है आपका. रिलायंस इंडस्ट्रीज 2200 से 2700, 2650 बहुत बड़ी प्रॉफिट होती है 20% की. अभी भी बुलिश है, ठीक है ना, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट जो क्वेरी है दैट इज ईस्टर, और आई कैन सी नेक्स्ट क्वेरी इज ईस्टर इंडस्ट्रीज. सो ईस्टर इंडस्ट्रीज दोस्तों बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट और बहुत बड़ी वॉल्यूम है. सो एज अ पॉलिसी हम आउट कर देते हैं. दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्निक दैट आई टीच इन आवर ट्रेनिंग, कि कैसे समझना है बड़े लोगों के फुटप्रिंट को. सो इट्स अ बुकिंग फ्रॉम माय साइड, रेस्ट इट इज अप टू यू. हिंदुस्तान जिंक. हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करें तो स्टॉक अभी निकलना शुरू हुआ है. मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक को आपको रखना चाहिए. 320 315 से ट्रेल कीजिए. आई थिंक दिस स्टॉक कैन हिट द न्यू हाइज एंड ओवर देयर यू कैन बुक प्रॉफिट्स. नेक्स्ट क्वेरी है रूपा एंड कंपनी. रूपा एंड कंपनी बाय है 450 पे. आई थिंक इसको आप होल्ड करिए. 430 का स्टॉप लॉस आपका नहीं हिट होगा, 420 कर दीजिए एंड वेट फॉर न्यू हाइज. और 550 के आसपास जो है ना, फिर बुकिंग का प्रोसेस आप शुरू कर देना. बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. These stocks may take time, but I think they will do one more high or probably just come here and then topple out. Next query I have in front of my screen is Equitas. Equitas holdings में कुछ long position है. So Equitas is still sort of okay, just coming out of this long downtrend. I think stock हो सकता है समय लेगा, ठीक है. बट Equitas अगर आपकी बाइंग यहाँ पे है तो अच्छी बात है, बिकॉज यू हैव अ वेरी नाइस स्टॉप लॉस टू डिफेंड. जस्ट अंडर 100 के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं. And you can wait for at least like 135 to 140. 135 is a good level. I think over there you should start the booking process. So 100 say 135 is a very good level. Although I don't like this stock, it's a sort of a perma bear, but फिलहाल के लिए 135 कर सकता है. नेक्स्ट क्वेरी जो है मेरे सामने वो है एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स लिमिटेड. सो एशियन पेंट्स राइट नाउ 3260 इज अ मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है. और इस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग हैं तो बी वेरी केयरफुल, ओके, बिकॉज इफ 3250 डजंट ब्रेक then it can fall also. Now why I am saying be careful on this stock is because see, इस स्टॉक को ध्यान से देखो. अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत काम की चीज़ है. लुक एट दिस, ठीक है. इस लेवल के नीचे यानी 3000 के नीचे कुछ ट्रेडिंग नहीं हुई है, पर मूवमेंट बहुत हुआ है.
कहाँ तक हुआ है? 2600 तक। कितना परसेंट होता है? 12%, 13%, 13.5%। तो 13.5% की वैक्यूम है, ठीक है। और स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस पे है। तो ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस नहीं हुआ तो स्टॉक सबसे पहले क्या करेगा? 3000 के लेवल पे आएगा, जो कि यहाँ से कितना डाउन है? 10%, ठीक है। तो ये लॉजिक है कि आप यहाँ निकलिए, या तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बुक करो, वेट करो, ये लेवल आज नहीं तो कल हिट होगा। अगर बाय करना ही है तो इसे यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। अब बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम ऑन द लोअर साइड, यहाँ पे जब ये नीचे जाके रिवर्स करे तब उसे बाय करो, क्योंकि तब ये बाय एंट्री हो जाएगी, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, और अगले राउंड में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बन जाएगा, और फिर ये प्रॉपर रैली करेगा। सो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये चीज़ें चलेंगी। सो ये एक अपडेट है, ये अच्छा एक एजुकेशनल पार्ट यहाँ पे एक दिखा मुझे, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ओके, आई विल टेक वन मोर क्वेरी, एंड आज का सेशन थोड़ा मैं छोटा रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट है फिलाटेक्स। फिलाटेक्स इंडिया, फर्स्ट टाइम ये चार्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सो सी दिस चार्ट, it just looks okay to me, and it's already trading at a upper end, not at lower end. So if you are long, then either trail to 120 or try to book profit. LNT, okay, Larsen and Toubro. So LNT has got a better chart, काफ़ी अच्छा इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, एंड आई थिंक LNT मैंने लगभग 10 दिन पहले शायद एक्सप्लेन किया था। सो LNT की बात अगर हम करें तो हाँ, यस करेक्ट। सो दिस इज व्हाट आई डिस्कस्ड कि LNT में अगर आप एक सेफ ट्रेड चाहते हैं तो वेट कीजिए करेक्शन का, एंड बाय नियर 1700, 1720 यहाँ बाय करिए, ठीक है। 1720, 1715 समवेयर हियर। सो यहाँ उन्हीं को बाय करना चाहिए जो कैश में बाय करना चाहते हैं, और आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है बॉस। एक चीज समझो, स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस जो है ना, मैं रखूंगा 100 पॉइंट नीचे, 1620 पे, ठीक है। एंड वंस इट कंप्लीट्स द करेक्शन, देन जब ये शुरू करेगा अप ट्रेंड, तो इसका टारगेट आएगा 1960। तो जिनको एक इन्वेस्टमेंट एंगल से ट्रेड करना है तो यू बाय एट 1710, 1720, कीप स्टॉप लॉस 1620, wait for 1960 to come, that is where the targets will be done, that is where you can book out, ठीक है। तो ये गेम प्लान है LNT में। अब आप इसे देखिए कैसे प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है हैथवे cables. So this is the next query, Hathaway cables and data. So let me check the chart. Okay, so this is a predominantly a bear market chart. So it's bearish and you should exit at 22.60 rupees. ठीक है। Next query है मारुति। ओके, लेट मी सी। मारुति पे पुराना व्यू अपना इंटैक्ट है कि 72 पे बाय या 84 पे सेल, दोनों ही नहीं है इसमें, तो अभी कोई व्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेरी है मेरे सामने वो है हिंद कॉपर। ओके, हिंद कॉपर पे क्वेरी है, हिंदुस्तान कॉपर। सो हिंद कॉपर अभी तो ठीक है, जैसा लास्ट टाइम बताया था मैंने कि 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 140 आने दीजिए। 140 पे डेफिनेटली एक बार कंसल्ट करना, क्योंकि 140 से अगर ये चलना शुरू किया तो ये स्टॉक बहुत भागेगा, एटलीस्ट 165, 170 तक तो जाएगा, और 140 से अगर ये वापस गिरता है तो बैक टू 100 हो जाएगा। सो इस बात का ध्यान दें कि 100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, 140 आएगा तब इसे जो है हम कंसल्ट कर सकते हैं। Next query that I see on my screen is GNA. GNA Excels Limited. GNA Excels predominantly a complete, gone case stock, प्योर ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक। सो इस पे अगर आप प्रॉफिट में आते हैं तो निकल जाओ। नेक्स्ट क्वेरी आई कैन सी इज ITC, एंड दिस शुड बी द लास्ट क्वेरी। ITC जो है 280 के नज़दीक आ रहा है, सो यू कैन बुक ओवर देयर। स्पेसिफिकली कल के लिए दिस इज़ नॉट द स्टॉक फॉर कल के लिए एंड परसों के लिए, दिस इज़ अ सिंपल ट्रेड सेटअप जो मैंने आपको यहाँ दिया था। 210 पे बाय करो, 280 पे बुक, और 320 अगला टारगेट है, बोनस है। सो आई विल गो विद दैट। दिस इज नॉट द स्टॉक फॉर टुमारो एंड इंट्राडे एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो हर स्टॉक अलग एक पर्पस के लिए होता है, ये इन्वेस्टमेंट वाला क्लीन स्टॉक था, ठीक है। सो इस टाइप के स्टॉक पे आप जो व्यू पूछ रहे हो वो गलत नहीं है।
Aja, you have bought at today's high. So you, if you have bought at today's high, it's a very classic mistake that you have committed. Tomorrow, be careful, okay? Because आप यहाँ पे क्या सोच के buy कर रहे थे? Buying नीचे की जाती है, यहाँ पे booking की जाती है. So I think you are already under loss. Tomorrow, if it doesn't open up, you can book out and wait for correction. Okay, so that's all from my side. Thank you so much for watching. Like, share, subscribe कर दीजिएगा. And all those who are interested to join our team, you can WhatsApp and you can join. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो सेशन. कल मिलेंगे इसी टाइम पे एक नए लाइव सेशन के साथ. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गुड नाइट. जय माता दी.